गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने ओहदे से इस्तीफा देकर जल्द होने वाले लोकसभा इंतखाबात में तमिलनाडु से मुकाबला करने के सिलसिले में गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी कयास आराइयों पर रोक लगाते हुए ये वाज़ेह कर दिया कि लोकसभा इंतखाबात में मुकाबले के लिए उन्होंने बीजेपी हाईकमान से कोई दरख्वास्त नहीं की है और उन्हें जो भी हिदायत मिलेगी उस पर वो अमल करेंगी। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि ओहदे से इस्तीफा से मुताल्लिक खबरें कयास आराइयों पर मबनी हैं। उन्होंने कहा कि वो इस मकसद के लिए दिल्ली नहीं गई थी और इस सिलसिले में किसी से उन्होंने दरख्वास्त भी नहीं की। There is no any true in that. I am here and it's all only speculations. If I want to decide anything, I will call all of you and I will decide and I will let you know, because I am very much involved in the activities of Telangana as well as Puducherry. Went to my native place, there I contested because heavily Thoothukudi was affected by floods. As a humanitarian approach, because so many people worked for me, and even though I did not win, some significant amount of people voted for me. So when that section of the Tamil Nadu, that district was very heavily affected, lot of lives, and वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। ज़राए के मुताबिक टाटा टेक्नोलॉजीज कंपनी मुल्क की सरकर्दा कंपनियों में से एक है। इस मौके पर उन्होंने रियासत के नौजवानों को असरी टेक्नोलॉजी से मरबूत ट्रेनिंग फराहम करते हुए रोज़गार के मौके फराहम करने के सिलसिले में टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के नुमाइंदों से तफसीली तौर पर तबादला ख्याल भी किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद श्रीनिवास रेड्डी ने नए साल के मौके पर आवाम को इत्तला दी है कि नए साल की तकारीब के पेश नज़र शहर में मुख्तलिफ ट्रैफिक पाबंदियाँ आयद की गई हैं। उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर की रात NTR मार्ग और PVNR वे के अलावा टैंकबंड पर रात 10 बजे से 2 बजे तक गाड़ियों की आमद-रफ्त पर पाबंदी लगा दी जाएगी। गाड़ी चलाने वालों से ख्वाहिश की गई कि वो मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें। उन्होंने कहा कि ट्रैवल बसों, हैवी गुड्स गाड़ियों और हैवी पैसेंजर गाड़ियों को 1 जनवरी को रात 2 बजे तक हैदराबाद शहर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं रहेगी। इसके अलावा पुलिस की जानिब से जगह जगह చెక్ పాయింట్స్ ఖాయం किए जाएंगे। కొత్త సంవత్సరం వేడుకలు రేపు ప్రారంభమవుతున్నాయి. యువతి యువకులకు నా సందేశం ఏంటంటే, మీరు కొత్త సంవత్సరాన్ని ఉత్సాహంగా, ఆనందంగా, ఆహ్లాదంగా ఆహ్వానించండి. ఖచ్చితంగా ఆ సందర్భంగా కొత్త సంవత్సరం అనే ఒక సందర్భము అందరిలో సంతోషాన్ని నింపేదే. ఎందుకంటే కొత్త సంవత్సరంలో కొత్త ఆశలు, కొత్త తీర్మానాలు, కొత్త కొత్త ఊహలు, ఇవన్నీ కూడా సృజనాత్మకమైన వ్యూహాలు అన్నీ కూడా మనం కొత్త సంవత్సరంలో అమలు చేయాలని అనుకుంటాము ఎవరైనా కూడా. అందుకు కొత్త సంవత్సరం ఒక నాందిలాగా మనం భావిస్తాము. సో ఆ సందర్భంగా దాన్ని ఆహ్వానిస్తూ వేడుకలాగా చేసుకోవడం ఒక ఆనవాయితీ, మంచిది కూడా, తప్పేం లేదు. అయితే నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, పరిమితులకు లోబడి పోలీస్ శాఖ చెప్పిన ఆంక్షలకు ఆ పరిమితుల్లోనే మీ ఆనందాన్ని జరుపుకుంటే, ఈ వేడుకలు జరుపుకుంటే అందరికీ సంతోషంగా ఉంటుందనేది నా సలహా, నా విజ్ఞప్తి. ఎవరైనా సరే ఈ పరిధులు దాటితే ఖచ్చితంగా చట్టపరమైన చర్యలు ఉంటాయి. దాంతో మనకి ఇబ్బంది ఏంటంటే, ఒకసారి ఒక నేరంలో భాగస్వామ్యం అయితే భవిష్యత్తులో అన్ని రకాల సమస్యలు, ముఖ్యంగా యువతి యువకులకు, చదువుకునే వాళ్ళు, ఉద్యోగాలు చేసే వాళ్ళకు రాబో భవిష్యత్తులో అనేక సమస్యలు ఉంటాయి. కాబట్టి క్షణికావేశంలో తప్పులు చేసి ఇటువంటి సమస్యకు, ఇటువంటి ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితికి లోను కావద్దు. అట్లాగే పబ్స్, రెస్టారెంట్స్ అండ్ అదర్ ఈవెంట్ మేనేజర్స్కి ఆల్రెడీ మేము నోటిఫికేషన్ ఇచ్చాము. ఏ పరిమితులు ఉండాలి, దేనికి లోబడి అవి పనిచేయాలి. వేళలు అంటే నిర్ణీత వేళలు కావచ్చు. ఆ ఈవెంట్లో వాళ్ళు మ్యూజిక్ అది పెడితే దాంట్లో వచ్చే సౌండ్ ఎన్ని డెసిబెల్స్ ఉండాలి, పక్క వాళ్ళకు, కాలనీలో ఉండే వాళ్ళకి ఇబ్బంది జరగకుండా. తర్వాత ఏవి అనుమతించబడతాయి, ఏవి అనుమతించబడవు, ఏ వయసు వారికి ఆల్కహాల్ అనుమతించబడుతుంది, ఏ వయసు వారికి అనుమతించబడదు, ఇవన్నీ చూసుకుని. साबिक वजीर हरीश राव ने मेट्रो ट्रेन में सफ़र किया।
एलबी नगर से लकड़ी का पुल तक उन्होंने मेट्रो में सफ़र किया। उनकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि उन्होंने साथी मुसाफिरीन से खुशगवार अंदाज में बातचीत की और उनसे हंसी मजाक भी किया। नागौल के शिल्पारामम में एक प्रोग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया था। रविंद्र भारती में अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन के प्रोग्राम में ताखिर पर उन्होंने मेट्रो ट्रेन में सफ़र को तरजीह दी। बीआरएस कायद व जनगांव के एमएलए पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने कहा है कि मल्लन्ना जात्रा का जायजा इजलास कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए मुनक्किद किया गया। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा कि कई कायदीन को इजलास में दावतनामे के बगैर बुलाया गया। मर्जी के मुताबिक इजलास की कार्रवाई भी चलाई गई। राजेश्वर रेड्डी ने वजीर कुंडा सुरेखा के रवैये के खिलाफ इजलास का बाइकआउट किया। कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने डीसीपी साउथ वेस्ट और ट्रैफिक अहदेदारों से मुलाकात की। उन्होंने आसिफ नगर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुसलसिल ठेलाबंडी पर कारोबार करने वालों को चालानात के मसले पर तबदला ख्याल किया। क़ब्ल आज मेहदीपट्टनम से ताल्लुक़ रखने वाले कारोबार करने वालों ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से दारुस्सलाम में मुलाकात करते हुए इस मसले से वाकिफ करवाया, जिस पर सदर मजलिस ने रुकन असम्बली कारवान को हिदायत दी कि तरजीही बुनियाद पर इस मसले की यकसुई के इक़दाम करें, जिसके बाद उन्होंने अहदेदारों से इस सिलसिले में बातचीत की। कौसर मोइनुद्दीन ने कहा कि कारोबार करने वाले सड़क पर रुकावटों के बगैर ट्रैफिक में किसी भी किस्म की मुश्किलात के बगैर अपने कारोबार को अंजाम दें ताकि वो किसी भी किस्म के चालाना से बच सकें। आज जो मेहदीपट्टनम के बाजार के आसपास में जितने भी फ्रूट के कारोबार करने वाले तमाम हजरात ट्रैफिक के आसिफ नगर ट्रैफिक की जानिब से जो चालाना किए जा रहे हैं उस सिलसिले में दारुस्सलाम पहुँचकर सदर मोहतरम जनाब नासिर मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब पर मुलाकात करके तफसीलात होता है। इसके बाद सदर मोहतरम ने मुझको हिदायत किया कि यहाँ पर मेहदीपट्टनम डीसीपी साउथ वेस्ट और डीसीपी ट्रैफिक साहब से बात किया और एसीपी गोशामाय से भी बात किया मोहतरमा साहिबा से, और उनको तयन किया कि उनके जो कारोबार है छोटे मोटे उन पर चालाना कर जो मजबूत किया जा रहा है। जो आसिफ नगर के ट्रैफिक के एसआई जो भी हजरात हैं उन्होंने तब तयन किया कि एसआई को और ट्रैफिक के इंस्पेक्टर को तमाम को बताएंगे, और मैं इनसे भी गुजारिश करा कि इसको ट्रैफिक को देखते हुए कारोबार को अगर आबाद में लगा कर करने का प्रयास, और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह डीसीपी साउथ वेस्ट और हमारे ट्रैफिक के जो डीसीपी है जो अफसर साहब ने भी तय किया कि मैं जो बात करके मायना करने का तय किया, और इंशाल्लाह अच्छे से मतलब जो मुझको हिदायत देते तमाम काम किया। और मैं इनसे भी गुजारिश करता हूँ कि ट्रैफिक को नजर रखते हुए जो आपके कारोबार है बिल्कुल साइड में करके उन्होंने जो भी कारोबार के लोग हैं उन्होंने तय किया कि बिल्कुल ट्रैफिक को परेशानी का सामना करना जो भी सकता है उसके मदद करने का। नए साल के पेश नज़र पुलिस चौकस हो गई है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। साथ ही नो पार्किंग इलाके में गाड़ियों की पार्किंग पर गाड़ियों की जब्ती का सिलसिला भी जारी है। अभी हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन है कि कुछ ग्रेवयार्ड्स पे जहाँ डार्क स्पॉट्स है वहाँ पे कुछ ड्रग अब्यूज़ माने गंजेडीज वगैरह बैठ के गांजा पी रहे बोल के कुछ इन्फॉर्मेशन आया। उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए उनको इन्फॉर्मेशन के ऊपर एक्ट करने के लिए हम लोग डॉग स्क्वाड जो एनडीपीएस डॉग माने जो नार्कोस जो भी ड्रग्स को सेंस करते हैं सूंघ के पकड़ लेते वो ऐसे ड्रग्स को लेके आए और कई जगह कई ग्रेवयार्ड्स को हम चेक किया कि कोई ड्रग्स वहाँ पे है या कोई ड्रग्स कंज्यूम करते हुए वहाँ पे बैठे हैं, इसीलिए आए। तो क्या मिला वहाँ पर कोई ड्रग्स का कुछ? अभी फिलहाल के लिए कुछ मिला नहीं। ड्रग्स करने वाला यूज़ करने वाला तो वो एक्चुअली वो हम लोग पिछले जो क्राइम पैटर्न लेके हम लोग ये एक्सरसाइज किया था और साथ साथ हमारे कुछ इन्फॉर्मेशन भी है लोकल इंटेलिजेंस से जिसका हम सोर्सेज का नाम नहीं बता सकते बट ये इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन है। बट साथ साथ जो पहले जो क्राइम हुआ उस एरिया में इसके एनालाइज करते हुए हम लोग को समझ में आया कि कहाँ पे पहले जो ड्रग कंजम्पशन हुआ हम लोग सारी लेके उस एरिया में हम लोग चेकिंग वगैरह किया था। कौन सा ग्रेवयार्ड आप लोग
रेन बाजार पे हम फारूक ग्रेवयार्ड चेक किया, उसके बाद मौला का चिल्ला चेक किया, और जब बावन तालाब कट्टा में बहुत सारी ग्रेवयार्ड्स थे वो सारी को चेक करते हुए आए थे। तो एंड कई कुछ डार्क प्लेसेस थे और जहाँ बहुत सारी व्हीकल्स रखा था, जहाँ चांसेस है लोगों को बैठ के ड्रग कंजम्पशन करने के लिए, वहाँ पे भी हम लोग डॉग स्क्वाड लेके चेक किया। क्या कहेंगे अगर ये ड्रग्स करने वालों के लिए, क्या मैसेज देंगे आप? सभी के लिए हम लोग एक मैसेज देना चाह रहे हैं, जो भी आपके एरिया में आसपास में कोई ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं उनके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो उन लोग को हम डी एडिक्शन सेंटर्स भेजा जाएगा, ताकि उन लोग को फिर वापस जो नॉर्मल लाइफ पे लेके आने के लिए और नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए हम लोग हेल्प करेंगे। साथ साथ जो ड्रग्स भेज रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगा, क्योंकि तो ड्रग्स ऐसी चीज़ है कि बाहर आप अखबार पढ़ते रहेंगे तो कई विदेशों पे बहुत नुकसान किया, इकोनॉमी को नुकसान किया। हम लोग अभी ये पूरा आप देख सकते हो, गवर्नमेंट भी इसमें बहुत सीरियस है एंड हमारा सीपी साहब भी इसमें स्पेशल फोकस लिया कि हमारा हैदराबाद सिटी को ड्रग्स फ्री रखे, और जो हमारा सिटी का एसेंस है, जो पीसफुल शहर है और जो अमन का शहर है, उसको बरकरार कर रखने के लिए हम लोग सारी एफर्ट्स कर रहे हैं। उसमें एक वन ऑफ द थिंग्स ही ड्रग्स का अगेंस्ट हम लोग सारी जो सप्लायर्स है, कंज्यूमर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं डी एडिक्शन के लिए, जो सप्लायर्स है और बीच में डिस्ट्रीब्यूटर्स है उन लोग के ऊपर सख्त एक्शन भी ले रहे हैं। तो सभी के लिए हम लोग अपील है, रिक्वेस्ट है कि ड्रग्स से दूर रहो, और जो भी ड्रग्स बेच रहे हैं हमको इंटीमेशन दे दीजिए। सर कितना पुलिस इसमें पार्टिसिपेट करा सकते? अभी आप देखो यहाँ पे देखे होगा तो अब रेन बाजार का पुलिस, भवन नगर का पुलिस, उसके साथ डॉग स्क्वाड्स, देन CAR का प्लाटून भी आए, ताकि पूरा एरिया को कवर करना था। जहाँ हमारे पास इंफॉर्मेशन था, कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, उसके ऊपर हम लोग पूरा एक्सरसाइज किया था। अभी 2 दिन के बाद में न्यू ईयर है ना सर, अभी उसके लिए, अभी जो न्यू ईयर आए उसके लिए क्या इंतजाम रहेंगे? न्यू ईयर के लिए जैसे हर साल जैसे ही हम लोग व्हीकल चेकिंग वगैरह हर जगह रख रहे हैं। तकरीबन 100 से ऊपर जगह व्हीकल चेकिंग हो रहे हैं, ताकि कोई ड्रंकन ड्राइविंग या रैश ड्राइविंग ना करे। हम सभी को आज शाम को साउथ जोन पे जितने भी बार एंड रेस्टोरेंट से, वाइन से, होटल से, सबको बुलाए थे, ओनर्स को, उनसे भी हम लोग बात किया। उन लोग को भी इंस्ट्रक्शन दिया गया कि टाइम जो है, टाइम को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, और उन लोग का एरिया में कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़, चाहे वो ड्रग कंजम्पशन हो, चाहे माइनर को दारू बेचना हो, या चाहे टाइम के बाद का ना वो टाइम के बाद एस्टेब्लिशमेंट चलाना हो, किसी किस्म की नहीं होना, इसके लिए हम लोग क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया। और ये भी उन लोग एक्सप्लेन किया था हम लोग कि इनकेस वो लॉ का तोड़ेंगे तो उनके ऊपर क्या क्या एक्शन होगा। और सभी को हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं मीडिया मित्रों के द्वारा कि देखो, ये ड्रंकन ड्राइविंग करेंगे तो पकड़े जाएंगे तो फाइन 10,000 फाइन के साथ साथ उनका जेल का भी सेंटेंस हो सकते हैं, साथ साथ उनका लाइसेंस पे भी इम्पैक्ट होगा। तो हमारा रिक्वेस्ट है, जो भी पार्टी कर रहे, जो भी कर रहे, पूरा लिमिट पे करके करें, और लीगल कानूनी तौर पे, कानूनी और लिमिट से उसको फॉलो करते हुए अपने न्यू ईयर पार्टी एंजॉय करने के लिए हमारा रिक्वेस्ट है। सर आपके लिमिट में जो बार शॉप है वो करेंगे क्लोजिंग का? अब एक्चुअली ये जो एक्साइज डिपार्टमेंट ने परमिशन आज कल शायद एक जीवो निकाला है, जिसमें ये दिया गया वाइन शॉप का 12 बजे तक है, कल तक बार शॉप का 1 बजे तक। तो हम बार 1 बजे और 12 बजे माने 1 बजे तक बंद होना। उन्हीं लोगों ये चीज़ हम लोग क्लियर कट तरीके से हम लोग उन लोग को समझा दिया कि 1 बजे बोला तो 1 बजे बंद होना, 1 बजे बोला तो एक पे भी होगा तो उनके ऊपर एक्शन होगा एंड एक्शन भी सख्त कार्रवाई होगा। उनका एक क्लियर कट इंटीमेशन और इंस्ट्रक्शन दिया गया आज। थैंक यू। याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने संतोष नगर डिवीज़न के नर्सरी गार्डन का दौरा किया। उन्होंने कहा कि सुबह के औकात में फिटनेस पर तवज्जो देने वाले अफराद की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि मजलिस की जानिब से योगा मैट, टी शर्ट, जैकेट्स, शटल रैकेट्स और फुटबॉल फराहम किए गए हैं। उन्होंने याकुतपुरा के मुख्तलिफ दीगर मैदानों का भी दौरा किया और इस बात को यकीनी बनाया
कि तमाम उम्र के अफराद और बिलखुसूस नौजवानों में फिटनेस की सरगर्मियों में इजाफा हो सके। आज सुबह संतोष नगर नर्सरी गार्डन में मैं अवले वक्त आया, जो पिछले संडे भी आया था। यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज देखते हुए मैंने ये सोचा कि अल्हम्दुलिल्लाह 2023 का आज लास्ट डे है, कल सुबह से 2024 इंशाल्लाह स्टार्ट होने वाला है। तो मैं यहाँ आके जितने भी सीनियर सिटीजन योगा कर रहे थे उनके लिए योगा मैट का इंतजाम कराए हैं, और उसके साथ साथ चूंकि ठंडी काफी ज्यादा भी रह रही सुबह अवले वक्त, तो डिंगरी का भी इंतजाम किए हैं। और उसके साथ साथ बाजू जो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं उनको फुटबॉल दिया गया है, और तमाम टी शर्ट्स डंगरी दिए गए हैं। जो बच्चे शटल खेल रहे हैं उनको शटल का रैकेट दिया गया है, शटल काग दिया गया है। ये सब चीज स्पोर्ट्स एक्टिविटी सुबह सुबह आके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नकीब मिल्लत की सदारत, नकीब मिल्लत की क़यादत के अंदर मेरे साथ में एरिया कारपोरेटर जनाब मुजफ्फर साहब और तमाम मजलिस के जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुद इतनी खुशी हो रही है, यहाँ पर एक्टिविटीज के अंदर काफी लोग, चाहे वो मेरे बुजुर्ग हो, नौजवान हो या बच्चे हो, तमाम के तमाम सुबह अवले वक्त आ रहे हैं। कोई वॉकिंग कर रहा है, कोई शटल खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई योगा कर रहा है। योगा के लिए यहाँ पर खवातीन भी योगा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला उनके लिए भी मैटों का इंतजाम किया गया है। इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स एक बेहतरीन चीज़ है। फिटनेस के लिए इंसान को बहुत ज़रूरी है, अपने आप को फिट रखना है, तो सुबह सुबह कोई ना कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, जिसमें मैं चाहता हूँ कि याखुतपुरे के अवाम के अंदर अव्वल वक्त उठने की एक तो आदत हो जाए, और दूसरी चीज़ फजर की नमाज के बाद में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए हम लोग दिलचस्पी ले रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इसमें काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है, और इंशाअल्लाह धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी कामयाबी मिलेंगे। मैं हत्तुल इम्कान कोशिश करूँगा ताकि लोगों को यहाँ पर आके अवेयरनेस ले आए और यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इजाफा हो। आज जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले संडे से ये संडे अगर देखते हैं तो काफ़ी तादाद बढ़ी हुई थी। उम्मीद करता हूँ दूसरे भी ग्राउंड्स है, वहाँ का भी इंशाल्लाह हम लोग विजिट करेंगे। दूसरे ग्राउंड्स के अंदर भी वहाँ पे भी एक्टिविटीज़ में इजाफा करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर मजलिस के कारपोरेटर जफ़र खान ने मल्लेपल्ली के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने सफाई वर्कर्स की हाजिरी की जांच की और घर घर कचरे की वसूली के प्रोग्राम का तफसीली तौर पर जायजा लेते हुए अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत भी दी। बोराबंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में मकानात में चोरी की वारदातें अंजाम देने वाले एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए रिमांड कर दिया गया। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाला मणिकंठा पंजागुट्टा पीवीआर सिनेमा बुकिंग काउंटर में मुलाजिमत करता था। वो चोरी की वारदातों में मुलविस था। పేరు ఆయన్ని మణికంఠ, కొల్లిపాక మణికంఠ అని చెప్పడం జరిగింది. అతని తండ్రి పేరు నాగేశ్వరరావు, వయసు 21. ఇతను పీవీఆర్ సినిమా హాల్ బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర టికెట్స్ ఇష్యూయింగ్ డ్యూటీ ఉంటుంది. అతను ఈజ్ నేటివ్ ఆఫ్ గండేపల్లి మండల్, ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్, మల్లేపల్లి విలేజ్. ఇతను హైదరాబాద్ వచ్చి ఎంఎస్ మక్తాలో ఉంటాడు. ఇతను ఇంటరాగేట్ చేస్తే తెలిసింది ఏంటంటే ఇతనికి ఈ ఆన్లైన్ గేమింగ్ అనేది ఆడటం అలవాటు అవుతూ ఉంది. దానికోసం అప్పులు చేస్తూ ఉంటాడు. దాంట్లో భాగంగానే ఆ అప్పులు తీర్చడానికని హైదరాబాద్ వచ్చి ఈ సినిమా హాల్ పీవీఆర్ సినిమా హాల్ దగ్గర బాక్స్ ఆఫీస్ డ్యూటీ చేస్తూ ఉన్నాడు. ఆ డబ్బులు అతను సరిపోవటం లేదు. దాంతో ఒకసారి ఈ బస్తీలలో ఎలా ఉంటుందంటే చాలా వరకు మిడిల్ క్లాస్, లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ ఉంటారు. భర్త ఒక దగ్గర పనిచేస్తారు, భార్య ఒక దగ్గర పనిచేస్తారు. వాళ్ళు ఇంటి తాళం వేసుకొని ఆ తాళం కీ అనేది ఎట్లా పెడతారు, రూఫ్ పైన కానీ, చెప్పుల కింద, లేకపోతే మన షూ లోపల, అట్లా రకరకాల ప్లేసెస్ పెడతా ఉంటారు. అవి బాగా అతను వాచ్ చేసి ఉండి ఎవరైతే ఇల్లు తాళం వేసి వెళ్తాం, అతను మధ్యాహ్నం టైంలో వస్తాడు. వచ్చేసి అటు ఇటు చూసుకొని వాళ్ళ బంధువులాగానే ఎవరు పక్కన వాళ్ళు చూస్తే ఏమనుకుంటారు, తాళం తీసుకొని లోపలికి వెళ్తున్నాడంటే ఎవరో తెలిసిన వాళ్ళే అనుకుంటారు కదా. ఆ మాదిరిగా ఆయన ఇంతవరకు 4 దొంగతనాలు చేసినాడు. అన్నీ కూడా బోరబండ ఏరియాలోనే. ఆ 4 దొంగతనాల్లో కూడా మొత్తం
కలిసి దాదాపు 207 గ్రాములు అంటే 20 తులాలు దగ్గర దగ్గర బంగారు ఆభరణాలు, అట్లాగే ఒక 5,000 క్యాష్ దొంగతనం చేయడం జరిగింది. ఈ దొంగతనం చేసి ఏం చేస్తాడంటే ఇతను తీసుకుపోయి కొన్ని ఏమో తాకట్టు పెడతాడు. తాకట్టు పెట్టి ఆ బ్యాంకులో పెట్టి ఆ డబ్బులు తీసుకొచ్చి ఆన్లైన్ గేమ్ ఆడుతూ ఉంటాడు. అట్లాగే కొన్ని ఏమో మేము ఇట్లా అప్పుల్లో ఉన్నాము అని చెప్పేసి ఒక మహంకాళి ఏరియాలోకి వెళ్ళి అక్కడ గోల్డ్ కొందరు ఇది కరగబెడతా ఉంటారు కదా, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి కరగబెట్టేసి ఆ గోల్డ్ కొందరికి అట్లా అమ్మేయడం జరిగింది. ఇతను ఇంట్రాగేషన్లో చెప్పాడు. ఇతని వద్ద నుంచి దాదాపు 54 గ్రాముల బంగారు రికవరీ చేయడం జరిగింది. ఆ రికవరీ చేసింది దాదాపు 2 కేసులకు సంబంధించింది. అయితే ఇతన్ని ఈరోజు అరెస్ట్ చేసి కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. జరిగిన తర్వాత ఇతన్ని పోలీస్ కస్టడీ తీసుకొని ఈ నేరం ఏ విధంగా చేశాడు, ఎక్కడ అమ్మాడు, ఇంకా రికవరీ చేయాల్సిన మిగతాది కూడా రికవరీ చేయడానికి మేము పోలీస్ కస్టడీ తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. అయితే ఈ విషయంలో బాగా పనిచేశారు ఎవరు సిసిఎస్ పోలీసులు కానివ్వండి, మన బోరబండ క్రైమ్ టీం, వీళ్ళందరినీ కూడా అభినందిస్తూ ఉన్నతాధికారులకి వాళ్ళకి మంచి రివార్డు ఇవ్వాల్సిందిగా సిఫారసు చేయడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. नए साल के मौके पर चिकन, मटन और मछली की फरोख्त में इजाफा हो गया है क्योंकि इन दुकानात पर आवाम का हुजूम देखा जा रहा है। इतवार होने के साथ साथ 31 दिसंबर होने पर ग्राहकों की बड़ी तादाद इन दुकानात पर देखी जा रही है। साथ ही चिकन, मटन और मछली की कीमतों में भी इजाफा दर्ज किया गया है। जयशंकर भोपालपल्ली में सड़क हादसा पेश आया जिसमें वैन का ड्राइवर हलाक हो गया। यह हादसा आज सुबह की अवलीन सातों में भोपालपल्ली के शाहरा पर उस वक्त पेश आया जब बस और डीसीएम वैन की टक्कर हो गई। हादसा इतना शदीद था कि वैन का ड्राइवर बरसर मौका हलाक हो गया। आरटीसी बस के बाद मुसाफिरीन भी इस हादसे में जख्मी हो गए। इस हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची जिसने ज़ाब्ते की कार्रवाई की। तेलंगाना में कपास की कीमतों में गुज़िश्ता साल के मुकाबले कमी देखी गई है जिससे किसानों में तशवीश देखी जा रही है। ज़राए के मुताबिक किसानों ने कहा कि उन्हें अक़ल तरीन इमदादी कीमत भी नहीं मिल रही है और हुकूमत उनकी मदद नहीं कर रही है। किसानों ने हुकूमत से मदद की ख्वाहिश की। दस्ताने तैयार करने वाली कंपनी में लगी आग के नतीजे में 6 मजदूर जिंदा झुलस कर हलाक हो गए। ये वाक़या महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के वालूज सनती इलाके में कल शब पेश आया। ज़राए के मुताबिक आग कल शब तकरीबन 2:15 को लगी जब वर्कर्स कंपनी की इमारत में सो रहे थे। इस वाक़े में 6 मजदूर जिंदा झुलस कर हलाक हो गए जबकि बकिया मजदूर जान बचाने में कामयाब रहे। इस वाक़े की इतला पर फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर काफ़ी जदोजहद के बाद आग पर काबू पाया। कई आलमी चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली विनेश फोगाट ने अपना खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड वापस कर दिया। दिल्ली पुलिस ने उन्हें वजीर आजम के दफ्तर तक पहुंचने से रोक दिया जिसके बाद उन्होंने कौमी दारुल हुकूमत के कर्तव्य पथ पर 2 अवार्ड्स रख दिए। मंगल को एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली रेसलर ने खेल रत्न अवार्ड और अर्जुन अवार्ड वापस करने का फैसला किया और कहा कि एक ऐसे वक्त जब रेसलर्स को इंसाफ नहीं मिल रहा है ऐसे एजाज़ात बेमायने हो गए हैं। उन्होंने वजीर आज़म मोदी को एक खत लिखते हुए अपने फैसले का ऐलान किया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।